So recently we have seen that how the Supreme Court has also rejected the plea which was being filed for this matter only. At that point in time also, Kerala Congress had also tweeted saying that it should not have been done. At least the Supreme Court should have listened to this petition, to which the BJP had replied that you want to target the Indian state. So do you believe that the legal route is now the only solution for this? We are a political party. If one door shuts does not mean all the other doors are also shut for a political party. We will raise this issue politically. There are various ways of raising an issue. Legal is one, political is another, activism is another, non-political activism is another, and the best route is the media. I hope you also adopt that route and write all this. सर, आपको लगता है कि ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है? क्योंकि एक साल के भीतर ये जो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज है निखिल गडकरी का, वो 17-18 करोड़ से सीधे 523 करोड़ का उनका जो है बिजनेस हो जाता है। एक साल में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतना प्रॉफिट, तकरीबन 2905% का प्रॉफिट है? जब 5 महीने में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 41 लाख नए वोट जुड़ जाते हैं, तो मिलावट की वोटर लिस्ट, मिलावट का पेट्रोल, और ये आपके सामने है हकीकत। ये आंकड़े जो आपने मुझे बताए, जो मैंने आपको भी बताए, ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से चोरी हो रही है, किस तरह से मेरी और आपकी जेब काटी जा रही है। Sir, a PIL on the same was filed in Supreme Court also, and Supreme Court dismissed it regarding the ethanol. So, what is the other option, alternative option? Well, this is the option. The option is that we raise it politically. The option is that the media covers it, and let's start asking questions. No responsible government can ignore these very, very important, sharp questions, because this affects all of us. So let's keep, Supreme Court has not stopped us from asking questions. Have they stopped us from exposing these facts and figures? No. Ji. Nitin Gadkari has rejected Mike. Any issue faced by any of the vehicles in the past. Well, he accuses all those who are questioning the ethanol issue as people who have been propped up by the petroleum lobby. So if you and I say that my vehicle is not giving me the mileage which it used to give before I started using the ethanol mixture, are you from the petroleum lobby? I don't think you are. I know you. I know you're not. But these are issues that affect all of us. So this is the pet excuse of this government. If the farmers raise questions, they are the Khalistani lobby. If the youth raise questions, they are the anti-national lobby. If you and I raise questions about our vehicles, we are the petroleum lobby. Congratulations, you also belong to a lobby now. पहले आप ये खत्म हो जाने दीजिए, फिर कई बातें कही गई कि इससे जो है पर्यावरण जो पोल्यूशन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, पोल्यूशन कम होगा, और माइलेज जो है वो गाड़ियों का बढ़ेगा, जिससे पोल्यूशन जो है वो कम होगा। क्या आपको लगता है कि एथेनॉल को मिक्स करने में सच में ऐसा हुआ है जो दावा पहले? मैंने आपको बताया कि जो डिस्टिलरीज होती हैं एथेनॉल की, वो रेड कैटेगरी में आती हैं, पोल्यूशन सबसे ज्यादा फैलाने वाली, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि 3000 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। नंबर 3, जो हमें वादे किए थे कि म्युनिसिपल वेस्ट से बनेगा, वो बिल्कुल 1 लीटर भी एथेनॉल म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, तो वहां से भी पोल्यूशन कम होने का कोई दरकार नहीं। तो कहां से पोल्यूशन कम हुई, जरा ये हमें बता दें। नंबर 4, आप अनाज और शुगर केन को इस्तेमाल करके एथेनॉल बना रहे हैं, पोल्यूशन कहां से कम हो रहा है, जरा इसका ये हमें जानकारी दें। हमने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए जहां से पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। पानी भी ज्यादा खर्च, 3000 लीटर प्रति लीटर ऑफ एथेनॉल पे 3000 लीटर पानी खर्च हो रहा है, ये मिनिमम बता रहा हूं। जी अरुण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? विषय अंतर है, शुरू करिए। अब ए फॉर अरुण है, चलिए अरुण से शुरू करते हैं।
सर जो जीएसटी के नए स्लैब्स हैं तीन, एक 40% वाला जो स्लैब है 28 हटा करके, उसको लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाने कल से शुरू कर दीजिए। बेसिकली क्या आप लोग चाहते हैं कि 2 ही स्लैब रहे या फिर तीसरा स्लैब है उसमें कोई हमने संशोधन तो चाहते हैं? शुरू से 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। माइक दीजिए भाई। जैनेंद्र जी ने आज खाना नहीं खाया, आवाज कम आ रही। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कल निर्मला सीतारमण से पूछा गया इसको लेकर के जो कांग्रेस निशाने साध रही है, तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि टोबैको पर जो है वो टैक्स जो है वो घटाया तो जाए। पिछले 11 साल से जो आप कर रहे थे, तो क्या आप ये चाहते थे कि टोबैको पे कम वाला स्लैब हो? ये अजीब सी बात है। पार्टी की क्या नीति है सर? वो पार्टी की नीति है कि एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जीएसटी शुड बी गुड एंड सिंपल टैक्स, इट कैन नॉट बी अ कॉम्प्लिकेटेड। टोबैको उत्पादों पर सर क्या बात वो नहीं है कि कौन सा उत्पाद और कौन सा उत्पाद नहीं। बार बार हम कह रहे हैं साहब 2 स्लैब्स रखिए, और 9 साल लग गए इनको हमारी सलाह मानने में। माइक ऑन करिए सर। ये जब ये रोल आउट किया गया था जीएसटी, तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था रात को, स्पीचेस रात को 12 बजे बिल्कुल, और इसको कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। और फिर कांग्रेस ने जब इसका क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी का ये बड़ा फ्रेज चला था उसमें वहाँ। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, विज़ इनका जो ये क्लेम था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, तो इसको कहाँ देखते हैं? 1 नेशन 5 स्लैब्स 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। जी और कोई विषय नहीं आज। बिहार बंद क्यों है? प्रयोग किया गया, उसको लेकर बिहार तो अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था क्या? बिहार से किया गया इसलिए। तो पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? वो चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको, जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी। ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, तीसरा टर्म दिया, इतनी गलतियां माफ कर दी, उस आदमी को जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती, उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी मां नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब नेक्स्ट सर, वो ईपिक वाले इशू को लेकर के आप लगातार निशाने पर है बीजेपी के। पहले उल्टा बोल रहे हैं, बीजेपी हमारे निशाने पर है।
तो अब उसी के काउंटर में आप निशाने पर है, पहले आपके 2 वोटर कार्ड का मैं मामला आज है। भी उनको निशाने पे ले रहा हूं। जी सर, सवाल तो, और इसके बाद आपकी पत्नी जो है नीलिमा कोटा जी, उनके 3 वोटर कार्ड का मामला भी सामने आया, बीजेपी की तरफ से लाया गया। तो सवाल वही उठाया जा रहा है कि एक तरफ आप लोग मुझे बताइए, वोटर लिस्ट में अनियमितता की बात करें, आपके कई वोटर कार्ड, एक वोटर की हैसियत से मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो शिफ्ट करता है तो वो एक फॉर्म भर के दे देता है। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग की, जाहिर सी बात है। बीएलओ जब भी रोल रिवीजन होता है, हर इलाके में उसको जाना चाहिए, जो उसका काम है, हर घर में जाना चाहिए जांच करने के लिए कि ये वोटर अभी मौजूद है या नहीं, जीवित है या नहीं, ट्रांसफर तो नहीं हो गया, कोई नए तो नहीं आ गए, ये सब बातें। जिस घर को मैंने 2016 में छोड़ा था, 16 से 25 तक कम से कम 7-8 बार रोल रिवीजन हुआ है। अब ये आपके सामने एक और एक्सपोजर खुद बीजेपी ने कर दिया कि इस तरह से चुनाव आयोग चलता है कि 7-8 रोल रिवीजन के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे अप्लाई करने के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे नए जगह वोट बनाने वाला भी चुनाव आयोग, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर भी पुरानी में नहीं कटा। बताइए, इससे बढ़िया मेरी मदद बीजेपी से ज्यादा और कौन कर सकता है? पहले अनुराग ठाकुर ने हमारी मदद की, अब बीजेपी के बाकी नेताओं ने की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। सर एक सवाल बिहार से और एक और बात, मुझे नोटिस देने में 3 घंटे लगे। राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्हें नोटिस दे दिया गया। न अनुराग ठाकुर को नोटिस मिलता है, न महादेवपुरा के 1 लाख फर्जी वोटर्स जिनके हैं, जो उनको नोटिस मिलता है, मुझे तुरंत मिल जाता है। मैं मांग बार बार दोहराता हूं कि नई दिल्ली के उस पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मैं मांग कर रहा हूं, मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नाम से वोट किसने दिया, अगर दिया तो। दिल्ली में SSR और SIR कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप रोल रिवीजन तो हर चुनाव से पहले 1-2 बार होता है, तो 7-8 बार तो हो चुका है। कहां है वो? सर बिहार से क्यों नहीं कटा वो नाम मेरा? जी बिहार से एक सवाल और है कि आपने कहा कि 89 लाख कंप्लेंट्स आप लोगों ने फाइल की हैं, तो क्या इस पे आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये जो डेटा आपने 89 लाख बताया है, इसको कैसे कंपाइल किया है और इसको किस फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट को तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेट सही नहीं है, और इसको कहां कहां कैसे कैसे क्या हो क्या रहा, मैं आपको बताता जी हूं। कैसे इसको आपने सबमिट किया है? बीएलए के माध्यम से अगर हम शिकायतें दर्ज कराने की कोशिश करते हैं तो वो स्वीकार नहीं की जा रही, सरेआम मना किया। ना केवल कांग्रेस को, बाकी पार्टियों का भी यही अनुभव है। बीजेपी को जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका काम तो चुनाव आयोग ही कर लेता है। हम अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है। हमारे बीएलएस जो भी शिकायतें लेकर जा रहे हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती है। वोटर को कहते हैं कि नहीं, आप दो शिकायत, फिर वोटर शिकायत देता है जो दे पाता है, सब नहीं दे पाते। उसको कहते हैं अरे ये लिखित में देने की क्या जरूरत है, हम कर देंगे। ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। हमने वो तमाम जिलावार शिकायतें इकट्ठी की, BLA 1 यानी कि DCC के माध्यम से हमने DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को जमा करा दी। वो 89 लाख ऐसी शिकायतें हैं। इन शिकायतों में 75% महिलाओं को मृत या पलायन घोषित कर दिया उनका, कई बूथ्स में। कई जीवित लोगों को मृत घोषित किया, वो तो आपको मालूम ही है, राहुल जी के साथ चाय पीते हुए आपने देखा उनको। कुछ बूथ्स ऐसे हैं जहां 200 लोग कम कर दिए, वो वहीं हैं। कहीं 100 वोट कम कर दिए, ऐसे कई बूथ हैं। तो ये सब शिकायतें मिलाकर 89 लाख शिकायतें हमने BLA 1 के माध्यम से दी हैं। लेकिन चुनाव आयोग अदालत में ये दिखाना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही, तो वो 0-0 का आंकड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए BLA के माध्यम से शिकायतें नहीं ले रहा है। सब कुछ है उसमें, इंक्लूजन भी है, जो जिनको मृत घोषित कर दिया साहब उनको वापस जिंदा कर दो, वो भी है। बिहार बंद के दौरान कुछ तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कई जगहों पे बीजेपी के कार्यकर्ता एम्बुलेंस को रोक रहे हैं। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अगर जा रहे हैं, उनके साथ महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें इसी को कहते हैं तो चोरी हो, ऊपर से सीना चोरी। अरे चोरी करते हुए पकड़े गए हो आप,
अब आप किसी चोर को पकड़ लो और फिर कह रहे मुझे गाली दे दी, मुझे गाली। अरे आपके साथ तो जो आपने हमारे साथ किया वो तो देखो, आपको अब सजा ये मिलेगी कि आपको लोग हराना चाहते हैं। अब आप जबरदस्ती बिहार बंद कराओ, फिर बदतमीजी करो लोगों के साथ, मरीजों को रोको, तो क्या कर रहे हो आप? आपकी चोरी पकड़ी गई, लब्बो लबाब यही है। हाँ, आप आनंद। Final voter rolls in Bihar might come after September 13th when the election dates will be announced. How do you look at it? Why should I look at it? Let the court look at it. Let the court look at it. इनको दो प्रदीप। मेरा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल है। ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा है कि जैसे जैसे ये मुकाबला करीब आ रहा है, नक्सली ठहराते हुए बड़े आरोप लगाए गए हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी। इनके आरोपों में आपका क्या जवाब? इसका जवाब कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश बहुत खुलकर दे चुके हैं, कई लोग दे चुके हैं। ये लोग जिनको 9 साल लग जाते हैं राहुल गांधी की सलाह समझने में, आपको लगता है कि ये कोई पूरी जजमेंट पढ़कर समझेंगे उसमें क्या क्या लिखा है? वो जजमेंट अगर आप पढ़ लें, आपके पास समय कम होता है क्योंकि सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग में होते हो, लेकिन पढ़ लीजिए, मैं कहता हूं आपको, मैं भिजवा दूंगा आपको। वो आप जजमेंट पढ़िए, वहां नक्सलवाद के खिलाफ क्या लिखा है, माओवाद के खिलाफ क्या लिखा है, वो बिना पढ़े। अमित शाह तो मैंने सोचा था पढ़े लिखे हैं, अब हो सकता है वहां भी गलत हो गया होगा, कुछ मुझसे गलती हुई होगी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं पढ़ते, समझ में आता है। लेकिन अमित शाह तो मैंने उनकी डिग्री देखी थी, कुछ था उनके एफिडेविट में, कुछ डिग्री विग्री है उनके पास भी कहीं की, तो वो तो पढ़ लेते। तो बिना पढ़े, और इस जजमेंट को 11 साल हो गए, क्या किसी भी कोर्ट ने इस जजमेंट को पलटा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जजमेंट को का हवाला देकर आप उस जज का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी बिना जजमेंट पढ़े कर रहे हैं। इससे ज्यादा वाहियात बात और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गृह मंत्री ही कर सकते हैं इस देश के। सर, मेरा नाम प्रशांत है, मैं हिंदुस्तान समाचार मैं जानता हूं आपको। सर, प्रशांत कुमार मिश्रा, आगे बोलिए। जी। सर, राहुल जी ने बिहार में हाइड्रोजन बम की बात की थी, सर कब तक आ रहा है? बहुत जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए, थोड़ा ब्लड प्रेशर तो बढ़ने दीजिए। सर, पंजाब को लेकर बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है पंजाब में, और जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए या पैकेज मिलना चाहिए पंजाब को, जो हालात है वहाँ पे 1000 से ज़्यादा गांव, 1300 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है, तो अभी तक सेंटर ने कोई पैकेज या कोई रिलीफ नहीं है ना उससे। देखिए साहब, रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक राज्य में जरूर बात की मुख्यमंत्री से, और भी राज्य हैं जहां बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। पड़ोस में जम्मू कश्मीर है, पड़ोस में हिमाचल है, पड़ोस में उत्तराखंड है, कहीं बात नहीं कर रहे हैं। पैकेज तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने मांग की है, और हमारी पूरी पार्टी पंजाब में सड़कों पर है, राहत पहुंचा रही है। आपने कल सोशल मीडिया पे भी देखा होगा किस तरह से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी हुए, या राजा वड़िंग जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हुए, हमारे तमाम नेता पंजाब के सड़कों पर हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, राहत सामग्री जुटा रहे हैं। लेकिन जिसका ये काम है, उसने तो इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि उमर अब्दुल्ला को भी फोन कर लेते, सुक्खू जी को भी फोन कर लेते। कहीं तो कुछ तो दिल दिखाइए, है आपके पास। हमें तो मालूम है नहीं है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मानते हैं प्रधानमंत्री के पास एक दिल है जो देश के लिए धड़कता है। हमें नहीं लगता है।